Jane student, today I am teach about spherical mirror and part of the spherical mirror, that is concave mirror, convex mirror, and how they form image from concave mirror, convex mirror, and what are the features of concave mirror and convex mirror. Okay, I teach spherical mirror about I teach about spherical mirror very briefly. So let us start spherical mirror. First, what is spherical mirror? Spherical is a part of hollow sphere ball. You know hollow sphere ball? A hollow sphere ball. Suppose we play cricket. You know, you see ball. Inside the ball, there is empty space. Nothing in the inside of the ball. Inside the ball, there is nothing. There is empty space. So we can say that ball is whole sphere ball. Sphere means what? It is a 3D picture. Okay, we can see any when we round that ball, we can see any part of that ball. Okay, we can easily see. So any object we can see every part of that object. Then we can say there is 3D picture. But if you see one face of object, suppose this board, only I see that face, front face of that object. So board, front face of that board only I see, but back face I can't see. So what is this? This is 2D picture, but sphere ball it is 3D picture because I can see every face of that ball. Okay, so that is spherical is 3D picture. So a concave mirror, a convex mirror, that is spherical mirror. It's come from spherical mirror. जो भी हमारे कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर आए हैं वो क्या स्फेरिकल बॉल से आए हैं. ठीक, एक स्फेयर बॉल है, होल स्फेयर बॉल. ओके, होलो स्फेयर बॉल मतलब उस बॉल में क्या है, कुछ भी नहीं है. When I draw this picture, you can't say what is this. Okay, you cannot say what is this. But this is a part of a spherical mirror. What is this? This is a part of spherical mirror. If you combine, if you complete that circle, then you found this is a what? Spherical mirror. Board is made up of board is 2D. Board is 2D because only x-axis and y-axis. So I can't draw the 3D picture here. Only draw 2D picture. I tell you about what is sphere. A cricket ball when you play or football. You play, that is also sphere. Okay, because they have length, breadth, height. Any sphere ball, if they have length, breadth, height, we can say that is 3D picture. So this is also a 3D picture. I draw a line here. In previous lecture, I will tell you about what is it. This is the mirror diagram pictures. This is arrow is part. This is mirror. Mirror. Okay. हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये क्या होता है पढ़ेंगे अच्छे से. ये क्या एक स्फेरिकल बॉल का पार्ट है. ये क्या है जो अभी ये ऐसा एकदम ड्रॉ किया गया क्या स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, लेकिन डॉट डॉट जो है वो स्फेरिकल वो कंप्लीट करके मैंने दिखाया है. ठीक, हाँ ये स्फेरिकल, लेकिन मैं उसका क्या एक पार्ट लिया हूँ. स्फेरिकल मिरर क्या हो, ये स्फेरिकल बॉल एक पार्ट लिया हूँ. उसका क्या लिया, एक पार्ट लिया हूँ. तो देखिए ये ऊपर क्या है, मैंने एरो डाला. तो क्या बना रहे हो, ये मिरर का है डायग्राम. मिरर डायग्राम बनाने के हमेशा क्या होता है, ये एरो डाला जाता है ऐसा ऐसा. मैंने एक अंदर एरो डाल दिया. तो देखिए अगर लाइट रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरह हो, कोई स्फेयर मिरर. देखिए स्फेयर मिरर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्फेयर का ही पार्ट है इसलिए स्फेरिकल मिरर बोल रहा है. क्या बोल रहा हूँ मैं,
स्फेरिकल मिरर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्फेयर का पार्ट है, इसलिए स्फेरिकल मिरर बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखिए कि कनकेव क्या होता है। अगर लाइट का रिफ्लेक्टिव, अगर लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लाइट इधर आ रहा है, यहां पर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, अंदर से ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो इसे बोलते हैं कनकेव। के मतलब क्या? गुफा। ओके, कनकेव मतलब इस मिरर पर, मतलब ऐसा जो बना है, ये क्यों क्यों नहीं आर पार जा रहा है? क्योंकि मिरर है ये। तो मिरर में क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है। देखिए लाइट आया यहाँ पर और रिफ्लेक्ट कर दिया, अंदर ही जिधर आया उधर ही रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, कनकेव है, अंदर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर लाइट आया ऐसे और क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, अंदर आया। देखिए इसके अंदर कनकेव क्यों बोलेंगे? देखिए देखिए गुफा की तरह है। तो ये क्या है? ये कनकेव है, इसे बोल, इसका नाम दिया गया है इस मिरर के लिए कनकेव। क्यों? लाइट ये क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है लाइट को, इधर ले आता है, झुकाता है, इसे कन्वेक्स कहते हैं। मीन्स ये लाइट को क्या करता है? लाइट यहाँ पर आया, इसे क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है, इसे डाइवर्जेंट भी कहते हैं। इसे कनकेव क्या होते हैं? कन्वर्जेंट मिरर, ऐसे डाइवर्जेंट मिरर ही बोलते हैं। ठीक, समझे? ये मिरर है, क्यों कनकेव बोल रहे हैं? क्योंकि ये अंदर की तरफ क्या कर रहा है? ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये क्या है? बाहर की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए बोलेगा कन्वेक्स। कन्वेक्स इसे बोले डाइव या डाइवर्जेंट। सबसे अगर नहीं आता तो डाइवर्जेंट, या तो लाइट देखिए फैला रहा है, ये लाइट को अंदर ला रहा है, मतलब कन्वर्ट करेगा। तो जो भी यहाँ पर हम लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराएंगे, क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा, ये कहीं एक पॉइंट पर काटेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे डाइवर्ट करेगा, ऐसे ऐसे डाइवर्ट फैला देगा लाइट को, ऐसे ऐसे क्या करेगा? लाइट को फैला देगा। रिफ्लेक्ट करेगा, जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये फैला देगा। इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, लाइट को फैला रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए क्या बोले? डाइवर्जेंट मिरर जिसे कहा जाता है। इसके आते कुछ पार्ट जो बेसिक नाम याद करना पड़ता है। यहां तो समझ में आ गया कि क्यों डाइवर्जेंट बोलते हैं और क्यों इसे कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसमें डाउट नहीं होगा। देखिए एक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखिए ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, मैं बताया क्या है, एक स्फेयर बॉल का एक है, होलो स्फेयर का ये एक पार्ट है। अगर होलो स्फेयर का एक पार्ट है तो क्या होलो स्फेयर अगर मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर नहीं होगा? होगा ना? इस होलो स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो उसी होलो स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं, होलो स्फेयर के सेंटर को कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है ना, इसको सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसे। क्लियर? मतलब कैसे इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि spherical mirror is the part of hollow sphere, so that hollow sphere have a center, that center is known as center of curvature. Clear? अब आता है, हाँ इसका भी सेंटर होगा ना? सेम जो यहां बोलूंगा वही सेम है, ये भी स्फेयर है, इसका कहीं कहीं सेंटर होगा। बस क्लियर? अब देखिए अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कर्वेचर, अब बताइए यहां सेंटर से यहां पर दूरी, यहां से यहां की दूरी क्या बोलेंगे? ये सर्कुलर पार्ट है नो, ठीक है, एक स्फीयर तो है ये, ठीक है, सर्कल नहीं बन रहा है। इस सेंटर से जो आर्क होता है, आर्क की दूरी क्या बोलते हैं हम? रेडियस। इसी को क्या बोलते हैं हम?
सेंटर से आर्क की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आता है पोल। पोल क्या होता है, एक टॉपिक आता है पोल। स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को, स्फेरिकल मिरर है, ये मिरर है, ये भूल जाइए, बस देखिए यही ना स्फेरिकल मिरर, यहां से लेके यहां तक, इसकी मिड पॉइंट को, इसके स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट कौन है, यही ना है। अगर आधा देखेंगे तो आधा में तो यही आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक है, इसका आधा बनाने की कोशिश करें तो यही तो बनेगा। तो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल। इसको क्या बोलेंगे हम, पोल। क्लियर। एक आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, a axis, a line which is passes from a center of curvature and touch the pole point। ऐसी लाइन जो पासेस करे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पास्ड अवे फ्रॉम पोल। ओके, जैसे बोले द अ लाइन व्हिच इज टच द सेंटर एंड पोल, a line which is passes from touch center and pole is known as principle of axis। इसको क्या बोला है, principle of axis, principle of axis। you see here this is principle not a प्राधान्यचार्य वाला नहीं है। यहाँ वहां क्या होता है, PLE होता है, वो प्राधान्यचार्य। बहुत कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर, लड़के जो आते हैं साइंस में बहुत कंफ्यूज होता है, अरे प्रिंसिपल कौन सा लिखूं, भूल जाते हैं सर कि PAL वाला लिखूं कि PLE वाला लिखूं, तो बहुत सारे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल स्पेलिंग फिजिक्स में क्या होता है, ये होता है, याद रखिएगा PAL। क्लियर। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, इस मिरर का मिड पॉइंट कौन है, ये इसके बोलेंगे P, पोल को P से दिखाते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से दिखाते हैं, और इसकी दूरी क्या दिखाएंगे, R से, रेडियस है ये। और जो यहाँ से लाइन पासेस हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास पोल को पास करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। कोई डाउट नहीं है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, पोल किसे बोलते हैं, इतना तो कोई डाउट नहीं। अब एक आता है फोकस। फोकस क्या होता है, जब light when light passes from parallel to principal axis, passes from parallel to principal axis, तो ये principal axis है, principal axis तो ये है, तो इसी के पैरेलल देखिए लाइट जा रहा है, and reflected from the at the point of principal axis, पास पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस किसी एक पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड होता है, जिस पॉइंट पे काटता है, उसी क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। इसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ कटेंगे तो क्या बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखिए ये जो फोकस यहाँ बनाया गया है, ये क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। क्या होता है, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा तो फोकस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। यानी बोल सकते हैं जो फोकस होता है, जो फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। यानी जो रेडियस होता है वो फोकस के 2 गुना होता है। ये भी तो बोल सकते हैं जो रेडियस होता है फोकस के 2 गुना होता है। या फोकस क्या होता है, सॉरी फोकस नहीं, फोकल लेंथ। देखिए पोल से फोकस की दूरी, पोल से, यही पोल है ना, पोल से फोकस की दूरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पोल से फोकस की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। इसे दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से। क्लियर। तो जो अभी बता रहा था वो फोकल लेंथ का बता रहा था मैं, कि जो रेडियस होता है आपका वो 2 गुना होता है आपके फोकल लेंथ के, या आप ये बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ हो सकता है। इतना तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर सारे डिफिनेशन में लिख दिया हूँ, जितना मैं बताया हूँ पूरा। ठीक, आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज नहीं बता, अपर्चर।
अपर्चर देखिए वही बता चाहिए था मुझे। अपर्चर देखिए, जैसे मैंने ये कनकेव मिरर बना दिया। कनकेव कैसा होता है, इसके बाहर तक पेंटिंग कर देंगे, बाहर तो क्या करें पेंटिंग, अंदर की तरफ पॉलिश होगा, तो बोलेंगे कनकेव है। कन्वेक्स क्या होता है कि अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे और बाहर की तरफ अंदर की तरफ मतलब पॉलिश कर देंगे, बाहर की तरफ पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस रहेगा। इधर कनकेव में बाहर की तरफ क्या करेंगे पॉलिश कर देंगे। देखिए अपर से क्या होता है, जब लाइट आती है ना तो इस शीशे पर, इस मिरर पे क्या होता है टकराती है। व्हेन लाइट क्या होते हैं इंसिडेंट ऑन दैट पार्ट ऑफ द दैट स्फेयर मिरर। जब लाइट जितने पार्ट पर स्फेयर मिरर लाइट जब आती है इधर लाइट, जितने पार्ट पर लाइट टकराती है, जितने पार्ट पर टकराती है वहां से मान लीजिए यहां से लेकर पूरा यहां तक लाइट इस मिरर को पूरा टकराई, यहां तक पूरा लाइट टकराई है। इस पूरे एरिया जहां तक लाइट टकराई है, जहां से लेकर जहां तक लाइट टकराई उसे क्या बोलते हैं अपर्चर। जैसे यहाँ पे लाइट जहां पर टकराती है, ठीक, जितना जितना तक टकराती है, जितना एरिया कवर करती है लाइट, जहां तक लाइट इंसिडेंट करती है, वो पार्ट मिरर का वो पार्ट जितना दूरी तक क्या होती है इंसिडेंट लाइट क्या करती है लाइट करती है, उसको क्या बोलते हैं अपर्चर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी के बीच क्या होता है लाइट इंसिडेंट कर रहा था, और शायद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है अब गैप पे किधर आएगा लाइट नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे इशारा करेगा क्योंकि ऊपर से मारेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऊपर से भी है, यहाँ कर सकते, लेकिन यहाँ पर अंदर कैसे घुसेगा। तो यहाँ से लेते क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है यह पर्चा बोलेंगे, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर जहां तक लाइट रिफ्लेक्ट ऊपर तक की है, और जहां से लाइट रिफ्लेक्ट मतलब तो ऐसा बोलो जहां तक लाइट इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट रहे ना, जहां तक लाइट ऊपर इंसिडेंट किया, जहां तक लाइट नीचे इंसिडेंट किया, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं अपर्चर। और फिर यहाँ बोलना हो तो यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की लाइट क्या बोलेंगे, यहीं से यहाँ तक है ना, इसे क्या बोलेंगे अपर्चर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे अपर्चर। क्लियर हो गया, ये पूरा डिफिनेशन नोट कर लीजिए। अब देखिए ये डिफिनेशन दूसरा है, आप तो यही खोज रहे थे डिफिनेशन मिल जाए साक्षात, ठीक है यू गॉट इट। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मैं जो डिफिनेशन बताया ना, जो मैं बता रहा था डायग्राम के साथ, वो सबसे बेटर रहेगा क्योंकि ये डिफिनेशन तो आप रटते ठीक है। आप चाह रहे तो नोट कर लीजिए, पोज कर नोट लीजिए। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब आगे आते हैं। इतना टाइम लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज कैसे फॉर्मेशन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो देखिए एक ले लेते हैं हम, ये क्या बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ऐसा क्वेश्चन किसने पूछ दिया ना तो कहा ना कि सर वी डू नॉट से दैट which type of this mirror and which type of this mirror because you did not polish any of the mirror। जब तक हमें पॉलिश भाग नहीं पता चलेगा किधर पॉलिश है तब तक हम नहीं बता सकते। अब देखिए अब मैंने क्या कर दिया इधर पॉलिश कर दिया, इसको इधर, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं जो बाहर की तरफ पॉलिश होता है उसे बोलते हैं कनकेव,
और जो अंदर की तरफ पॉलिश होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक, ये क्या है, या कन्वेक्स मिरर बोलिए, कन्वर्जेंट। मैंने बताया था लाइट क्या कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ क्या होगा, लाइट डाइवर्ज होती है, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। चलिए कुछ रे जानते हैं। हमें पता है, मैं बताया था जब प्लेन मैंने बता रहा था, किसी भी इमेज को बनाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए यू हैव टू रिक्वायर ओनली 2 रे। 2 रे में ही हमारा काम चल जाता है। ओके, ओनली 2 रे इज रिक्वायर्ड फॉर यू मेक एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज। ओके, देखिए यहाँ भी तो कुछ रूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसको हम जान लेते हैं। पहले बता रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका सेंटर बना रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर वहाँ बोलते हैं आप, मैं जब लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी से दिखाएंगे, ये क्या हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बताया था कि फोकस क्या होता है, रेडियस के हाफ। यही तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस है, ये क्या होता है, रेडियस के हाफ। ठीक, फोकस क्या होता है, रेडियस के हाफ। ये क्या हमारा पोल, सेम यहाँ पिक्चर बना लेते हैं, ये हमारा सेंटर। ओहो, सेंटर, फोकस, ये हमारा रहा पोल। क्लियर। देखिए कनकेमिनेट किए रे डायग्राम। अगर अगर जो लाइट है इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत ही दूर से आ रही है। इन्फिनिटी मतलब क्या, जो हमारे कब्जे में नहीं है। ठीक, बहुत दूर से आ रही है लाइट, जो हमारे मुताबिक वो बहुत दूर है। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, है ना। तो क्या पैरेलल आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल आती है तो क्या होती है, वो फोकस से होते हुए, क्या बोला हूं मैं, फोकस से होते हुए गुजर जाती है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और फोकस से होते हुए गुजर जाती है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, अगर अगर एक और बना दे रहा हूं यहाँ पर, सबसे अच्छा रहेगा यही बेटर की, एक और बना दे रहा हूं। ये आपका पोल रहा, सेंटर, फोकस, ये आपका कनकेव मिरर। ठीक, अगर लाइट फोकस से होते हुए आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, इंसिडेंट कर रही थी मिरर पर, ये फोकस से रिफ्लेक्ट कर रही थी। यहां देखिए फोकस पर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रही है, जस्ट वाइस वर्सा। प्रिंसिपल पर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस पर आएगी तो प्रिंसिपल से जाएगी। फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, फोकस से जाएगी, फोकस पाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर। एक और रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। ये रहा, ये आपका सेंटर, ये आपका फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। जब किरण सेंटर पर होते हुए आती है, जब लाइट सेंटर पर, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द सेंटर देन रिबाउंड्स फ्रॉम दैट ऑफ द पॉइंट, तब उसी पॉइंट पर सेंटर से होते हुए ही गुजर जाती है। अगर लाइट सेंटर पर गिरती है तो सेंटर से होते हुए गुजर जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आते हैं कन्वेक्स पर। अगर लाइट पैरेलल आ रही है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये डॉट क्यों बनाया, क्योंकि इधर है तो इधर लाइन रहेगा ना, ये इमेजिनरी लाइन इधर बना दिया कि हाँ यही प्रिंसिपल एक्सिस है।
इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो कहाँ होते जाएगी, ये ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है, सॉरी फोकस से होते हुए गुजर रही है। इसे डॉट करके बनाएंगे तो क्या लगेगा हमें, क्या है, ये फोकस से होते हुए गुजर रही है, ये जो लाइट है। डॉटेड करके बनाएंगे, याद रखिएगा। क्यों डॉटेड करके, कि लाइट इधर आएगी, ये किरण क्या होगी, पैरेलल आएगी। जब देखेंगे ना हम, एरो बनाना सीख लीजिएगा, जिधर किरण जाएगी, जिधर लाइट जाएगी उधर ही क्या होगा, एरो होगा। इधर लाइट रहेगी इधर एरो, उधर जा रही तो उधर एरो। जब जब कन्वेक्स मिरर पर लाइट आती है तो पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं, जब रिफ्लेक्ट करती है सेम मीडियम में, तो क्या होता है, हमें लगता है कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, जब देखते हैं लाइट रिफ्लेक्ट की, तब शीशे जब देखते हैं लगता है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से ही आई है लाइट। ऐसा जब आंख में देखते हैं तो लगता है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए आ रही है लाइट। कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए आ रही है। इसे डॉट इमेजिनरी लाइन बनाया है, ये एक्चुअल जा नहीं रहा है वहां पर, लेकिन हमें लगता है क्या कि यहीं से होते हुए जा रही है लाइट। ठीक, दूसरा देखते हैं, पुनः एक बना देते हैं हम कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी सेम, ये रहेगा आपका फोकस, ये आपका सेंटर, ये आपका एक्सिस है। क्या है आपका एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या था आपका प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक, ये आपका था प्रिंसिपल। अब देखिए जब लाइट, सेम वही है, सेम वही क्रिया होगा। जब लाइट फोकस पर गिरेगी, देखिए फोकस पर गिर रही है लेकिन जाएगी कहाँ, ये पॉलिश सरफेस है ना, पॉलिश सरफेस, तो लगेगा हमें, देखिए कहाँ गिर रही थी, फोकस पर, लगा था क्या फोकस पर जा रही है, लेकिन ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके जस्ट पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल कहाँ बता दे, हाँ यहाँ बता दे रहे, ये पहला था, दूसरा था, ये क्या तीसरा बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये कन्वेक्स मेरे बना रहे हैं यहाँ पर, ये क्या आपका फोकस, ये आपका सेंटर। जब लाइट सेंटर पे गिरेगी, तो सेंटर पे एक्चुअल में जा नहीं रही है, कहाँ है सेंटर पे एक्चुअल में जा नहीं रही है, ये लगेगा क्या अभी सेंटर पर जा रही है, ऐसा लगेगा। तो बताया था अगर सेंटर पर जा रही है तो क्या होगा, पुनः सेंटर से होते हुए ही निकल जाएगी। क्लियर, डायग्राम हो गया खत्म। ये डायग्राम अच्छे से दिमाग में नोट करिए, इसे पिक्चर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा। जल्दी हो गया होगा। तो आते इमेज फॉर्मेशन, अब देखेंगे किसका किस तरह इमेज बन रहा है। ठीक, किसका कैसे इमेज बनेगा अब देखेंगे। चलिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा इमेज कैसे, इमेज हाउ टू इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर, बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखते जाइए। ठीक, कनकेव मिरर से पहले 6 इमेज बनेंगे, कन्वेक्स मिरर से 2 ही इमेज बनेंगे, तो कोई ज़्यादा ही नहीं है। कैसे बनेगा मैं लास्ट में बताऊंगा इसका ट्रिक, कैसे बन रहा था ये। ठीक, पहले देखते हैं, पहले हम 6 कनकेव मिरर बना लेंगे पहले 6। कोई दूसरा कलर है, है तो एक, दो, तीन, 4, 5, 6। प्रिंसिपल एक्सिस,
धीरे धीरे स्लो जाने का मकसद यही है कि आप अच्छे से समझ जाइए, ना कि लगे एकदम स्पीड। स्पीड तो मैं जा सकता हूँ, बहुत स्पीड जा सकता हूँ, इतना स्पीड जाऊंगे तक खत्म। अरे उसमें जाने से क्या मतलब है, कोई भूसा थोड़ी ना भरने आपके माइंड में। हमें क्या करना है, आपको नॉलेज देना है कि आप ये नहीं नॉलेज देकर अरे इतना परसेंटेज आएगा, परसेंटेज कोई माने नहीं है, ठीक है ना। जो 60% भी लाया है ना वो भी कर रहा है कुछ, जो 40% ला रहा है ना, जो 45% वो भी यूपीएससी कर रहा है। हाँ रिक्वायर होता है नीट आईआईटी के लिए 75%, तो वो रिक्वायर होता है, लेकिन यूपीएससी देखिए 40%। वहाँ पर देखिए नॉलेज आप तभी तभी आपका मान्य होगा नॉलेज है आपके पास जब वहाँ पर ज़रूरत है उसकी, आप वहाँ पर उस नॉलेज का प्रयोग करें। अब ये नहीं कि बकते हुए जाए, शांति स्वभाव रहिए। बस देखिए पहला, देखिए पहला जो मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ, ये आपका पहला क्या हुआ, ये सेंटर, ये फोकस, एक पोल। इतना तो क्लियर हो गया आपका। पहला जो इमेज बनने जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मान लीजिए हम ही है, हम कहाँ है, इन्फिनिटी कहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मान लीजिए कहीं यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक, कहीं यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, बताया था जब इन्फिनिटी से रे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। क्लियर, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। एक और लाइट इन्फिनिटी से मान लेते हैं, यहाँ से दो रे की यूज होती है ना, तो यहाँ से भी हम ले सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन थोड़ा हम यहाँ से ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलिए आपको डाउट है, ठीक है कोई बात नहीं, इसके फुट से ले रहे हैं। ओहो, दो रे हम कहीं से ले लेंगे तो पुनः ये कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी, आई थी कहाँ से, जाएगी कहाँ से, फोकस से। क्लियर, देखिए यहाँ पे इमेज बनेगा, आपका इमेज जो बनने वाला है वो कैसे बनेगा, ये क्या था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था दिखाते हैं किससे, यू से, इमेज को दिखाते हैं भी से। तो देखिए इमेज, इमेज फॉर्मेशन में बोल दे क्राइटेरिया इसके लिखिए कैसा बना है। देखिए इमेज कहाँ बना है, इमेज पहला एट फोकस। क्लियर, और कैसा है दूसरा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। देखिएगा बहुत छोटा बनाया, बहुत छोटा बनेगा। इसी में आएगा कि जो ब्यूटी पार्लर में मेकअप लगाते हैं आप लोग, मेकअप लगाते हैं लड़कियां, वो कौन सा मिरर की यूज करती है, यही पढ़ेंगे। पेंट करते हैं कौन सा मिरर की यूज करते हैं, जो हम देखते हैं अपने पीछे वाले, जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, कोई भी चलाते हैं, तो शीशे जो लगा रहता है वो कौन सा मिरर का लगा रहता है, उससे कैसे देखते हैं ऑब्जेक्ट को, बहुत यही तो पढ़ेंगे। देखिए दूसरा हो गया क्लियर। अब तीसरा देखते हैं, कुछ और बता रहा है, फोकस बनाया, हाँ तीसरा बता रहा है, ये क्या है, रियल है। रियल को बता, तो जिस दुनिया में ऑब्जेक्ट है उसी दुनिया में इमेज भी बन रहा, बताया था जिस दुनिया में, इसी दुनिया में है ना ऑब्जेक्ट, थोड़ी ना इस दुनिया में है, जिस दुनिया में ऑब्जेक्ट उसी दुनिया में इमेज बनता है। रियल मतलब क्या, जो स्क्रीन पर बन सके, ठीक। वर्चुअल मतलब क्या, जो स्क्रीन पर ना बन सके। रियल मतलब क्या, जो स्क्रीन बना सकते हैं, उतार सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रियल। देखिए इसे मैंने उतार दिया, इसमें का मैंने उतार दिया, मैंने कोई आभास नहीं किया हूँ, ठीक, कोई आभास नहीं किया कि हाँ यहाँ पे इमेज होगा, मैंने आभास नहीं किया। मैंने क्या किया, एक पर्दे पर उतार दिया, हाँ इसका इमेज यहाँ पर बनेगा।
देखिए यहाँ बना है, रियल बना है, क्योंकि जिस दुनिया में ऑब्जेक्ट उसी दुनिया में आपका इमेज भी है। जहाँ रियल आता है वहाँ इन्वर्टेड आता है। क्या आता है? इन्वर्टेड। मतलब ये जो भी इमेज बनेगा ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। मतलब इसका पैर जो है, लेग ऊपर हो जाएगा, इसका हेड है डाउन हो जाएगा। क्लियर? ये आपका रहा पहला। अब दूसरा देखते हैं। ये आपका सेंटर, फोकस, पोल। अभी बस देखते जाइए कैसे कैसे बन रहा है। अब देखिए इन्फिनिटी था, अब क्या आ रहे हैं हम? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ ला रहा है? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। पहला। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। अब कर्वेचर देखिए, यहां से रे पास कराइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो कहां से जाएगा? ये एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल गया तो कहां से जाएगा? कुछ जाएगा ये फोकस से। ठीक। अब एक और एक यूज है, तो यहां से देखिए सेंटर से ही पास कर दीजिए। चाहे आप चाहते तो पोल से, जितना एंगल पे यहाँ पोल से बनेगा उतना ही एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्टेड भी करेगा। तो देखिए हम एक सेंटर से पास कर रहे हैं। कहां से? एक सेंटर से। जब सेंटर से लाइट आती है तो पुनः सेंटर से ही चली जाती है। क्या ये पुनः सेंटर से ही चली जाएगी? क्लियर है? देखिए यहाँ कट कर रही है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जहाँ कट करेगा वहां पर इसका हेड हो जाएगा, जहां पर ऊपर जाएगा क्या बनेगा? इसका लेग। ये क्या हो जाएगा? इसका लेग। ठीक। तो देखिए इसका इमेज फॉर्मेशन, इसका इमेज कैसे बना है? पहला ये बना है इमेज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। दूसरा पॉइंट क्या है? ये डिमिनिश है। क्या है? डिमिनिश्ड, छोटा है, छोटा बना है। तीसरा पॉइंट क्या है? देखना ये रियल, मतलब रियल दुनिया में है। रियल, तो रियल जहां है तो वहां क्या है? इन्वर्टेड। याद रखिए, जहां रियल वहां इन्वर्टेड, और जहां वर्चुअल वहां इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब देखिए यहां पर आते हैं। ये क्या आपका सेंटर, ये आपका फोकस, ये पोल। अब देखिए सर यहाँ पर मैंने ये नहीं बनाया है, ये सबसे बड़ा क्या है? मिस्टेक। ठीक। इसे बनाना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप बता नहीं सकते हैं कौन सा ये मेरा है कौन सा नहीं। अब देखिए इन्फिनिटी और सेंटर बीच आ गए थे। अब कहाँ बारी आने का है? सेंटर पर। सेंटर पर आ गए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल पे कहाँ जाएगा? फोकस से। ठीक। ये कहाँ जाएगा? फोकस से होते हुए निकल जाएगा। एक क्या करें, हम फोकस से ही पास कर रहे हैं। कहाँ से? फोकस से ही पास कर रहे हैं। देखिए यहां से तो मैंने बताया था जब फोकस से जाती है लाइट तो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। इमेज वो फॉर्मेशन देख कर आइए अच्छे से। बिना अगर देखे आ गए हैं यहां पर कोई बात नहीं, लेकिन उसे बिना देखे आप बना भी नहीं सकते। तो देखिए ये कहां बना है? एकदम सेंटर पर ही बनेगा। क्या बनेगा? सेंटर पर ही। तो जहां कट कर रहा है, ये दोनों की जहां कट कर रही है वहां क्या हो जाएगा? इसका हेड, इसका लेग जो है ऊपर चला जाएगा। हाइट से मतलब थोड़ी मेरे हम स्केल्स थोड़ी नहीं बना रहा हूँ मैं, जितना ये जितना हाइट इसका एच होगा उतना ही हाइट यहाँ होगा। तो देखिए पहला इसका इमेज फॉर्मेशन का पहला क्या होगा? कहाँ बनेगा? एट सेंटर। इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर बन रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेम साइज होगी। तीसरी पॉइंट रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर? चौथे के लिए आते हैं। चौथे के देखते हैं क्या बनता है।
ये आपका रहा सेंटर, ये आपका फोकस, ये पोल। तो देखते हैं अब सेंटर पे आ गए, अब आना है इसके सेंटर और फोकस के बीच, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लीजिए तो कहाँ जाएगा, ये फोकस से होते हुए निकल जाएगा। ठीक, एक और क्या चाहे, हम चाह रहे थे फोकस से ही पास कर दें, फोकस से ही पास करा दो, कोई दिक्कत नहीं, पास हो गया। तो कहाँ पे जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए ये बियॉन्ड सी बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है, सी के पीछे बनता है। यहाँ पे इसका हेड हो जाएगा, इसका यहाँ पर लेग। देखिए इमेज कहाँ है, पहला इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा कैसा, इसका साइज कैसा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखिए इस ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है, लेकिन इमेज का हाइट इतना है, बड़ा हो गया ना, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, रियल है और क्या है, इनवर्टेड है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, इस वाले पर। सेंटर फोकस पा गया, अब कहाँ आना है, इसको फोकस पाना है। कहाँ पाना है, ये आपका सेंटर हो गया, आपका फोकस। अब कहाँ आना है, इसको फोकस पाना है। अब बंदा आएगा यहाँ पर फोकस पर। एक का करिए प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो कहाँ जाएगा, फोकस से ही जाएगा, यहाँ पर फोकस है ना, तो यहाँ से फोकस से ही ये जाएगा, कंफर्म है वहीं जाएगा। एक का करें हम, ये पी है ना, पहले तो ये डायग्राम बनाइए, ये मिस्टेक कभी नहीं। देखिए एक का कर रहे हैं हम, पोल से पास करा रहे हैं, तो पोल जितना एंगल पे यहाँ पर पास होगा उतना ही एंगल से तो यहाँ से पास होगा, तो उतना ही एंगल से कर रहे हैं हम, उतना ही एंगल से पास होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर कटेगा, जहाँ कटेगा वहाँ क्या बन जाएगा, इसका हेड, यहाँ पे इसका लेग। तो देखिएगा इसका इमेज, पहला इमेज कहाँ बना, एट फोकस, सॉरी ये कट कैसे गया, हाँ? ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पाएगा ना। हाँ, माना जाता है ऐसा कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे ये क्या करेगा, कटेगा, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे कटेगा, तो जो इमेज बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा जो इमेज बनने जा रहा है वो कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। क्या बनेगा, इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा इमेज। ठीक, तीसरा क्या हो सकता होगा, वो रियल होगा एंड इनवर्टेड, उल्टा होगा। क्लियर। अब आते हैं लास्ट इमेज पर हमारा। लास्ट इमेज क्या है, ए सी एफ। ठीक, देखिए अब फोकस पर आ गया, तो अब बंदा कहाँ आ रहा है, फोकस और पोल के बीच आ रहा है, फोकस और पोल के बीच आएगा। तो पहले एक यहाँ पे पास करिए किरण, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, फोकस से होते हुए निकल जाएगा। एक पोल से पास करा दीजिए, तो कहाँ जाएगा, ये फोकस से, सॉरी फोकस नहीं, पोल पर उतने ही एंगल पर बनाते हुए निकल जाए, जितना एंगल ये इतना एंगल ये। तो ये कहीं मिलने का चांस है, देयर एनी चांस टू मीट, नहीं कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि तो डाइवर्ज हो रहे, तो कहीं मिलने का चांस नहीं था। कहीं पीछे माना जाता है, ये क्या होगा, कहीं पीछे ये दोनों मिलेंगे, रिफ्लेक्टर जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है वहीं से एक्सटेंड कर रहा हूँ, कभी पीछे कहीं भी लाइट एक्सटेंड करना होगा, क्या करेंगे आप, जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के पीछे से डॉटर को बनाए जाते हैं, देखते हैं। तो कहीं यहाँ माना जाता है, कहीं यहाँ बनेगा। ठीक, तो देखिए पहला केस, इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी, और जो जो इमेज बनाया कैसे बनाया, लार्ज बनाया। तीसरा जो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाया, ये देखिए वर्चुअल, ये क्या, ये तो वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअल जहाँ वहाँ आके आ जाएगा इरेक्ट।
इरेक्ट। कनकेव मिरर का एक यही केस है जहां पर वर्चुअल इमेज बनता है, नहीं तो बाकी सब में देखिए सब में रियल बना है इमेज, पांचों में कैसा बना है रियल। लेकिन कनकेव मिरर से एक ही केस है जहां क्या होता है वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब आभासी, रियल नहीं बनता, उसी दुनिया में नहीं बनता, किसी और दुनिया में बनता है। वो कब बनता है जब एफ और पी के बीच में होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, एफ और पी के बीच में रहेगा तभी कनकेव मिरर से एक वर्चुअल इमेज बनेगा। एक कंडीशन होता है कनकेव मिरर से जहाँ क्या होता है वर्चुअल इमेज बनता है। और जो ब्यूटी पार्लर होता है ना, यही मिरर यूज किया जाता है। यहीं पर जब क्या करते हैं कनकेव मिरर लेते हैं, फोकस और पोल के बीच अपने चेहरे को रखते हैं ताकि ये दिख रहा है ना, ये सारे बाल और दिख जाए अच्छे से, काटे इसे। जो ब्यूटी पार्लर में होते हैं क्या होते हैं अच्छे से क्या करते हैं सब, लिपस्टिक चाहे चाहे ऐसे ये काटना है ये सब, तो ये सब काटने में क्या करते हैं यही सब यूज कर किया जाता है। फोकस और पोल के बीच में लाते हैं कि बड़ा बड़ा चेहरा दिखे। तो याद रखिए ब्यूटी पार्लर में जो यूज करते हैं, चाहे आप लोग जो दाढ़ी बनाना है, मोच काटना है, तो क्या होता है यही यूज किया जाता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। ये जो आप मिरर पढ़ रहे हो ना, ये मिरर ये दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा बड़ा ये अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये बहुत इतने छोटे छोटे मिरर बना के पढ़ रहे हैं। कितने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे मिरर बना के पढ़ रहे हैं। हम तो इसे मैग्नीफाइड कर दिए हैं, लगाया है टेलीस्कोप बड़ा, चाहे लगाया है क्या बोलते हैं उसे, वर्नाकुलर दूरबीन, उसे लगाया है बड़ा कर दिए, ठीक, मैग्नीफाई कर दिए। तो इतना छोटे छोटे मिरर कम पढ़ रहे हैं, ना कि हम इतने बड़े बड़े मिरर का पढ़ रहे हैं। बहुत छोटे छोटे मिरर का पढ़ रहे हैं हम, बहुत छोटे मिरर का, तभी तो दो ले लिए हैं। बड़ा बड़ा मिरर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जितना छोटे को अगर प्रूफ हो गया तो बड़े पे माना जाता है कि हाँ ऐसा ही जाएगा। क्लियर है। तो जो ब्यूटी पार्लर में या आप जो सेविंग करते हैं, जो मिरर यूज करते हैं, कौन सा कनकेव मिरर यूज किया जाता है, ताकि हम आसानी से अपने चेहरे को बड़े देख सकते हैं। बड़े देख लेंगे तो हम आसानी से कुछ भी अगर काटना हो, सेविंग करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ओके क्लियर। यहाँ पर अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर पर। एक चीज बताने में भूल गया, ये इन्फिनिटी था, फोकस, यहाँ देखिए यहाँ फोकस बन रहा था इमेज, यहाँ फोकस बन रहा था। यहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा था क्या, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे इमेज एक कदम पीछे आएगा। एक कदम आगे गया, जैसे एक कदम ऑब्जेक्ट आगे गया, देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो एक कदम आगे गया, इमेज जो है ना एक कदम पीछे आएगा। एक कदम और आगे, ऑब्जेक्ट एक कदम और पीछे। देखिए कैसे इनफिनिटी था, इमेज कहाँ बना था फोकस पर, अब एक कदम आगे आया, इन्फिनिटी और सेंटर पीछे आया, इमेज भी एक कदम पीछे और गया, फोकस भी गया। देखिए यहाँ फोकस बन रहा था, अब क्या था फोकस और सेंटर बीच में आ गया। यहाँ देखिए सेंटर पे, अब क्या था इन्फिनिटी और सेंटर बीच में था ना, अब कहाँ आया सेंटर पर, एक कदम आगे गया। फिर तो देखिए पुनः इमेज भी क्या एकदम पीछे आ गया, सेंटर पर आ गया। कहाँ था सेंटर एफ के बीच था, अब कहाँ आ गया सेंटर पर गया। यहाँ देखिए अब सेंटर के आगे जाने की बारी है, सेंटर से आगे गया, इमेज देखिए सेंटर से पीछे आ गया। पुनः यहाँ देखिए फोकस पे गया, फिर सेंटर से बहुत दूर पीछे गया। एक यहाँ पे एक कंडीशन था, जो इमेज पीछे नहीं गया बल्कि आगे ही बना, लेकिन वर्चुअल बना। याद रखिएगा सबसे आसान तरीका, जैसे आगे जाएगा वैसे इमेज पीछे जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए। आप यहाँ से इमेज को हमेशा पढ़ना जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। जल्दी से देखते हैं कन्वेक्स मिरर है, बहुत अच्छा है। दो ही इमेज ही इसका बनता है, कितने इमेज दो इमेज। कन्वेक्स मिरर ऐसे बनाते हैं, अरे लग रहा है इंक तो डालना पड़ेगा। दो ही इसका इमेज ही बनते हैं, कन्वेक्स मिरर दो ही इमेज बनते हैं। ये आपका क्या हो गया,
ये आपके यहाँ पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर, फिर यहाँ पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर। ये आपका एक्सिस, ये भी आपका यहाँ पर एक्सिस जा रहा है। एक्सिस मतलब ये एक्सिस सेंटर और फोकस होते हुए जा रहा है, ठीक। ये क्या हो, एक्सिस से जा रहा है, इसे तो बड़ा किया गया। और सेंटर सेंटर बना हुआ तो बस यहीं छोड़ देते, लेकिन एक्सिस बना है प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या होता है इन्फिनिटी से आते हुए जाता है, सेंटर फोकस काटते हुए। देखिए पहला इमेज, पहले क्या हुआ, इन्फिनिटी से किरणें आई, फोकस से होते जाएगी। ऐसा लगेगा कि जो किरणें, जो लाइट आ रही थी इन्फिनिटी से, वो कहाँ जा रही है, फोकस से आ रही है। तो फोकस से आ रही है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए एक और लाइट पास करा दे, यहां से फोकस से किरण आ रही है, ऐसा लगेगा जैसे, सॉरी इन्फिनिटी से किरण आ रही है, मतलब लाइट आ रही है, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक। जब रिफ्लेक्ट हो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे इमेज बनने जा रहा है, देखिए इमेज जो बनने जा रहा है, पहला पॉइंट वो क्या बनेगा, एट फोकस। दूसरा पॉइंट वो वर्चुअल होगा, क्यों, देखिए डॉटर का बन, जहाँ डॉट का लाइट, जहाँ डॉट का हम किरण बना रहे हैं, जहाँ डॉट का लाइट बना रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे को, तो वो समझिए वर्चुअल ही बनने वाला है। वर्चुअल इमेज को ही दिखाने के लिए इस तरह डॉट, देखिए वर्चुअल इमेज दिखाना था, डॉट का लाइन ले गए थे, तो क्या बनेगा, वर्चुअल तो इरेक्ट, जहाँ वर्चुअल है तो इरेक्ट है। लेकिन इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, देख रहे हैं एकदम पॉइंट साइज है। दूसरा इमेज देखते हैं, दूसरा इमेज क्या देखें, एक सिंपल देखते हैं। एक देखिए इन्फिनिटी और पोल के बीच लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से होते जाएगा, क्लियर इतना। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल फोकस से होते हुए जाएगा, ऐसा लगेगा क्या, ये फोकस से आ रही है लाइट, रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, फोकस से। एक क्या कर रहे हैं, पोल पर गिरा रहे हैं किरण, एक लाइट क्या कर रहे हैं, पोल पर, तो कहाँ जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई उतने एंगल पर, उतने एंगल पर इंसिडेंट, उतने एंगल पर रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड ये तो कट करते जाइए, यहाँ कट करिए, यहाँ पे इसका हेड बन गया, ऐसे यहाँ पर ले। इमेज कैसे बना, ये बना बिटवीन, बिटवीन पहला पोल एंड फोकस। दूसरा इमेज जो बना वो कैसे बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या, और कुछ। तीसरा इमेज कैसे बना, इमेज जो बना जो इमेज बना क्या बना, ना हाईली डिमिनिश्ड है, वो बस क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, वो छोटा बनेगा, क्लियर। अब देखिए इसके यूजेस क्या है, कन्वेक्स मिरर का जो यूजेज है, कन्वेक्स ये मिरर बता रहा हूँ, सॉरी कनकेव, कनकेव मिरर पहले कनकेव मिरर, ओके सॉरी गलती होगी, कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर की यूजेज है मैंने बता दिया, पहले ब्यूटी पार्लर में आप यूज कर सकते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं वो भी यूज करते हैं, कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, ताकि दांत बड़ा बड़ा दिखे तो कुछ फंसा निकल जाए या ऑपरेशन करना कर सकते हैं, कनकेव मिरर का डेंटिस्ट यूज करते हैं। पेंटिंग करना, मान लीजिए यहाँ पर पेंटिंग करना है, चेहरा को पेंट करना है, कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर की, ताकि बड़ा दिखे, हाँ दांत नहीं दिख रहा है, निकल निकल निकल, ऐसे क्या होता है, ऐसे सारे देख कर निकाला जाता है। तो क्या यूज करें, कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर की यूज क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है आपका, वो होता है आपका रेयर व्यू के लिए। तो रेयर व्यू मतलब पीछे देखने के लिए, जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है, शीशे लगे तो किसका शीशा होता है, वो जो मिरर होता है, विच टाइप ऑफ मिरर, दैट मिरर इज द कन्वेक्स मिरर, ओके दैट मिरर इज द कन्वेक्स मिरर। कार चलाते हैं, व्हेन यू कार ड्राइव, तो क्या होता है, जब कार ड्राइव करते हैं आप तो वहाँ शीशा होता है, तो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का बना होता है, उसी से क्या होता है, पीछे देखते हैं आप, ठीक। कन्वेक्स मिरर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मैं बता रहा था, ये क्या होता है, यहाँ की किरण भी कैप्चर कर लेते हैं, सब पूरा किरणें भी क्या होते हैं, कैप्चर, जितने भी लाइट होते हैं सारे कैप्चर कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर से बहुत बड़ा पीछे के देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया,
बट व्हेन यू राइड बाइक तभी वहाँ क्या होता है, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। देखिए बाइक जब बोलते हैं तो राइड बोलते हैं, और जब कार बोलते हैं तो ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव, DRIVE। और कहाँ यूज होता है, हाँ मोड़ों पे यूज किया जाता है, जहाँ राउंड होता है, रोड राउंड होता है, व्हेन देयर इज राउंड रोड, तो वहाँ क्या होता है, कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। वहाँ पर रोड जहाँ राउंड होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर रोड है, ये रोड आ रहा है, यहाँ तक रोड आया, यहाँ पर मोड़ना है ना, ये रोड आ रहा था, ठीक, यहाँ मुड़ रहा है, तो यहाँ क्या होता है, ये बहुत बड़ा सा देखे होंगे कनकेव मिरर का जो मिरर लगा होता है, वो कैसे मिरर होता है, कन्वेक नहीं, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर होता है। कैसे होता है, कन्वेक्स, तभी तो एकदम सीधा ऑब्जेक्ट देखते हैं उसमें, जब उसके पास जाते हैं एकदम चौड़ा दिखने लगता है, दूर होते हैं वहां से कैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ इसे लगाया जाता है, ताकि इस मोड़ के साइड कोई कोई भी व्हीकल आ रहा होगा, इधर वाला को पता चल जाएगा, यहाँ पे देख लेगा, व्हीकल आ रहा है तो साइड ले लेगा, इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है, कन्वेक्स मिरर होता है। जैसे रोड के किनारे किनारे जो लगाए जाते हैं लैंप, लैंप की तरह देखें, वो भी क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का ही होता है, ठीक, वो भी क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का। अब जब पढ़ेंगे ना हेडलाइट के बारे में, तो वहाँ देखेंगे कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, बहुत बीम ऑफ लाइट अट्रैक्ट करता है, वो पढ़ेंगे आप, कनकेव मिरर मैं बताऊंगा और डीप में, ठीक, इतना तो मैंने बहुत बताया। अब आगे के लेक्चर में कल बताऊंगा कैसे फार्मूला ड्राइव होगा, कैसे फार्मूला डिराइव किया जाएगा, किधर किस ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाएगा, इमेज को, कैसे नेगेटिव साइन होता है, कैसे पॉजिटिव साइन होता है, साइन कन्वेंशन उसे बोलते हैं। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल इसका देखेंगे, ठीक, उसके बाद स्टार्ट होगा, पहले लेंस स्टार्ट होगा, लेंस में तो और मजा आएगा, ठीक। तो इसका समझ में यूजेज कहाँ है, कनकेव कन्वेक्स मिरर का, भूलेगा मत, ब्यूटी पार्लर। जय हिंद।